we have a panel discussion on digital backbone for smart water networks, integrating AI, IoT, and SCADA for future-ready utilities and scaling innovation through collaborative models. For this, please join me in welcoming on stage Mr. Shamim Akhtar, Chief Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam Urban, Government of Uttar Pradesh; D.K. Singh, Chief Engineer and State Coordinator, Jal Jeevan Mission, Government of Uttar Pradesh; Ravindra S. Sinha, Groundwater Action Group, Member Drafting Committee, UP State Water Policy; Sudhir Dembi, Software Leader, Schneider Electric India; Dr. Anirudh Pandey, Retired IFS Officer and Advisor to Rural Development Department. Please welcome our esteemed speakers with a round of applause. In order to moderate the session, I would like to invite on stage Rajneesh Desai. We have been hearing about the confluence of technology and policy level in the water resource management and water management, and just the fireside chat we had with GS Naveen Kumar threw open lights on many of the new technologies. So we have the people who are deploying the solutions, and would like to know the more updates on how the water resource management is happening in Uttar Pradesh and how technology is being leveraged. From the technology standpoint, I'd like to start with you, Sudhir, first. So when we are talking about water operations, the true efficiency comes, which I mentioned in the morning also, when you are saving on water and energy both. So, but this requires new gen technologies to help more efficient water networks. So, very briefly, if you can mention this efficient water networks, what are the directions being taken under this? On the efficient water networks, what we are trying to do is we are trying to integrate last mile distribution systems out there, get the measurements out there, have the data constantly constantly archived at the remote places and give it to the main systems out to analyze the data where the losses are there and define the problem areas out there so the corrective actions can be done. That's a major thing what we are doing for the last mile part. Okay, thank you. So again, the importance of data, one, identifying the leakages part there. Okay, so let's hear from D.K. Singh. What we are talking about, we heard about a smart water grid when we are talking about smart digital technologies. So what do we mean by a smart water grid, or what are the key components of how a smart water grid looks today? What are the key components of a smart water grid? जी थैंक यू। देखिए, हम लोग के पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उसमें ये बात आ रही थी कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोर शोर से हो रहा है। टेक्नोलॉजी इज़ देयर एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए वो भी हैं। बट जैसे कि नवीन कुमार साहब ने कहा कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है वो इंड यूजर तक कैसे उसको लिटरेट किया जाए कि वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सके। और जैसे साइकिल है, ड्राइवर भी है, बट वो हाउ टू साइकिल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका इस्तेमाल हम कैसे ऑप्टिमम करें ताकि हम अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में इसका बेहतर इस्तेमाल कर सके टेक्नोलॉजी का। फ़िलहाल मैं अभी जल जीवन मिशन को देख रहा हूँ और उसमें लगभग 40,000 प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 2,56,000 हैबिटेशंस को कवर कर रहे हैं और 2,67,00,000 परिवारों को टैप के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब ये विदाउट टेक्नोलॉजी असंभव सा है कि हम ये मॉनिटर कर पाएँ कि क्या हम सभी घरों में सही समय से क्वालिटी वाटर सप्लाई कर पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के
बिना बिल्कुल ही असंभव है। तो हम लोगों ने जैसे कि आप पहले सेशन में आपने कहा कि क्वेश्चन भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कि बजटरी कॉन्स्टेंट भी सरकार के साथ रहता है। इन स्पाइट ऑफ दैट आजकल जो भी स्कीम्स बन रहे हैं उसमें सभी स्कीमों में ऑटोमेशन सिस्टम, स्केडा सिस्टम, IoT के इस्तेमाल करने का प्रोविज़न रखा जा रहा है, जो भी हमारे सीमित संसाधन हैं उसके बावजूद। अभी जो हमारे जल जीवन मिशन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैंने बताया कि 40,000 हमारी स्कीम्स बन रही हैं। हमें 97,000 लगभग 1 लाख विलेज में वाटर सप्लाई करना है। सर इधर ही एक चैलेंज जो ये जो स्केलिंग अप अभी भी हम पिछले ये कैसे आप कर रहे हैं? तो वी आर ऑलरेडी यूजिंग SCADA system, automation system, and your Schneider and all these companies are also participating in that. हम लोग ट्यूबवेल से कितना पानी ले रहे हैं, वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम सेंसर, देन क्वालिटी उसकी क्या है, pH एनालाइजर, क्लोरीन एनालाइजर, ये सब हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगेन हमने X अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट किया थ्रू ट्यूबवेल, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू पब्लिक, टू ए पर्टिकुलर विलेज, ये हमारे पास सेंसर के माध्यम से हम आ रहा है। तो वाटर ऑडिट करने में हमारे को कितना हमने वाटर एक्सट्रैक्ट किया और कितना हमने इंड कंज्यूमर तक उसको सप्लाई किया, एंड रेस्ट ऑफ द जो लॉसेस हैं इसको डिटेक्ट करने में ये टेक्नोलॉजी हमें काफ़ी हेल्प कर रही है। हमें पता चलता है कि ट्यूबवेल से हमने X अमाउंट लिया, हमारे ESR तक Y अमाउंट पहुंचा, तो X माइनस Y ये लॉसेस हैं, इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये रियल टाइम पे हमें डाटा मिल जाता है। पहले क्या होता था कि कोई चीज़, मान लीजिए हमारे कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लीकेज है, कोई आदमी हमको आकर के बताएगा, गांव का आदमी कोई देखेगा, बताएगा, उसके बाद ही हमें पता चलता था कि वहाँ लीकेज है, एंड देन रेक्टिफिकेशन वर्क स्टार्टेड। बट अभी क्या है कि हमें लाइव ये दिख रहा है कि हमारा पानी यहाँ से इतना गया है और इंड तक इतना ही पहुँच पाया, इसका मतलब यहाँ इस सेक्शन में लीकेज है और रेक्टिफिकेशन उसका। और इसके लिए काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस जो भी आप लोग डेवलपर्स हैं वो काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस दे रहे हैं और हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा कि बजटरी कंस्ट्रेंट है, तो हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम हर घर तक मेजरमेंट कर सकें कि हमने हर घर में जो पानी दिया उसकी क्वालिटी क्या रही और क्वांटिटी क्या रही। बट नियर फ्यूचर ये निश्चित रूप से हम वहाँ तक हमारी रीच होगी और हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको अच्छी सर्विस दे सकेंगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे, I'll come to you next. See, we heard from the urban perspective, now from the rural perspective, and especially in the last session we emphasized on the community involvement. Community involvement के बिना वो technology deployment will not be successful. So what is been your experience in especially in the rural development in involving community when a lot of these technologies are leveraged in water resource management? Yes, this is very important component to implement for this water management, sustainable water management. And if any scheme is there and the people's participation is not there, it is never successful. We have total 8 to 7 blocks in 75 state districts of Uttar Pradesh and 58,000 gram panchayat. We are working in this, and we are working for the water conservation works at the grassroots level, at the gram panchayat levels. We are working for making check dams, percolation tanks, ponds, rainwater harvesting structures, recharge structures, trenches, watershed management. Many works are being done by the Rural Development Department at the grassroots level. And if we are going to the last person of the country,
that is at the Gram Panchayat level, villagers, and we are training them. We are telling them that this is the method by which we can go for the sustainable water management. I think this is the best जो हमारा प्रयास है, ये इसके सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये. And we don't have any scarcity of the budget. We have a scheme मनरेगा, MG मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा. इसमें हमारे पास बजट की कमी नहीं है. अब मैं पिछले 5 साल में जो हमने काम किए हैं इस फील्ड में, जो हमने बताया आपको, 21-22 में हमने कुल 52,000 वर्क्स किए हैं. इसमें इस फील्ड में वाटर मैनेजमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं, 22-23 में 1,06,000 किया है. 23-24 में कुल 62,000 किया है. 24-25 में 99,000 किया है. 25-26 में हमने कुल 2,26,193 में किया है. तो वी आर डूइंग वर्क्स इन दिस फील्ड and we are trying to educate every person of the village so that these technologies are being spread to the last man of the society. Thank you. Thanks for highlighting those statistics, which shows basically how the scaling up is happening in rural areas. और budgetary constraints कोई मतलब बहुत क्रिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं हो सकता है मनरेगा के फंडिंग यूज करके. दैट्स वेरी हार्टनिंग टू नो. थैंक्स. नेक्स्ट आई विल कम टू रविंद्र सिन्हा. सर, द क्वेश्चन इज, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. वी आर hearing from the morning from all the speakers, and more accurate insights. So how, from a groundwater perspective, you are looking at enhancing the operational efficiency using all this data? Can you repeat, please? The operational efficiency, improving the operational efficiency using this data. How are you looking at that? Thank you. Issue is sustainable water management. और जब हम वाटर की बात कर रहे हैं, we cannot talk in isolation. Exactly. बारिश होती है, there are 3 components, major components: rainfall, then comes surface water and ground water, जो मॉर्निंग में कई स्पीकर्स ने बात भी करी. और जब हम वाटर को जब तक एक हॉलिस्टिक नज़रिए से नहीं देखेंगे, तो उसके सॉल्यूशंस भी उसके से, जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी आती है. तो ये पूरा एक जो स्टेट है हमारे सामने, नज़रिया है, उसको हम कैसे रखें. हमारा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने डाटा की बात करी, कि जब हम सबसे पहले बात तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी. इसका मतलब नेचुरल फॉर्म में वाटर अवेलेबल था, कोई दिक्कत नहीं थी. आज मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज देयर इज सम क्राइसिस. और क्राइसिस से एमर्ज होती है क्या हम सॉल्यूशन निकालेंगे, और जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आएंगी. तो टेक्नोलॉजी को जब हम कोरिलेट करेंगे तो उसमें कई सारे स्टेजेस को हमको देखना पड़ेगा. पहला, जब क्राइसिस आएगी तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी साइंस इस्तेमाल करें जिससे हम उसका पता लगाएं. अभी तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या एग्जैक्टली डायग्नोज हमने कर लिया है. हम अर्बन की बात कर रहे हैं, हम रूरल की बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. हर जगह ग्राउंड वाटर या वाटर एज ए होल इसका यूज़ होता है. और बिना वाटर को इग्नोर किए हम कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं देख सकते हैं. तो मेरा कहना ये होगा कि सबसे पहले तो ये है कि हम उस क्राइसिस को समझें. हमें ये देखना पड़ेगा, जब हम एक होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं वाटर मैनेजमेंट की, सस्टेन, तो कौन कौन से एरियाज़ हमारे पास हैं, कहाँ पे क्राइसिस है, उस क्राइसिस को हम पहचानें और उसके हिसाब से हम अपने आगे जो इंटरवेंशंस हैं उसके और सॉल्यूशंस हैं उसको हम ढूंढें. तो सबसे पहले तो हमारे सामने आता है कि हमारे पास डेटा है कि नहीं है. अगर हम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, सुबह भी पहले स्पीकर्स ने, नवीन जी ने और बहुत लोगों ने कहा, अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है
तो वो हमको बता देगा कि कौन सी हमें डायग्नोसिस करनी है, क्या हमें इसको प्रेस्क्राइब करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, और उसी से हमारी टेक्नोलॉजी निकलेगी। तो सबसे पहले डेटा और डेटा की करेक्टनेस। अब डेटा कितने तरीके का होगा? डेटा बहुत सारा डेटा हमारा है, वो डेटा सब स्कैटर्ड पड़ा है, आइसोलेटेड पड़ा है। ये बात बहुत दिनों से स्टेट लेवल पे चल रही थी कि कैसे चाहे हमारी स्टेट वाटर पॉलिसी हो, चाहे ग्राउंड वाटर पॉलिसी हमारी हो, ये डेटा को इंटीग्रेट किया जाए। क्योंकि डेटा अगर आप आज देखेंगे तो अगर हम केवल ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर का डेटा कितने डिपार्टमेंट्स में फैला हुआ है। एग्जैक्टली। और जब डेटा हमारे पास नहीं होगा तो हम उसका सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे? हम ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने एक डेटा अपना यूज़ किया, जल निगम के पास बहुत ज़्यादा डेटा है। आज यूपी हमारा ये जल जीवन मिशन में जो ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, इसका बहुत एनॉर्मस डेटा आ रहा है। हम अभी तक जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट करते हैं वो हम करते हैं डायनेमिक, मतलब जो रेनफॉल से बारिश होती है उससे जो पानी हमारे ज़मीन के अंदर है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। हम उसके बियॉन्ड जो हमारा डीपर एक्वीफर्स में पानी है उसका हम असेसमेंट नहीं करते हैं। और जो हम जल जीवन मिशन में पानी निकाल रहे हैं वो हम डीपर लेवल से निकाल रहे हैं। तो जब ये तो इसका मतलब यहाँ पे आती है कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो इस पूरे डेटा को इंटीग्रेट करे, उसको एनालाइज करे, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाए और उससे हम ऐसे यूज़र फ्रेंडली डॉक्यूमेंट्स बनाएं, मैप्स बनाएं जो एक कॉमन, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उमाशंकर जी के सामने भी वो डेटा पहुंच जाए, उस नक्शे को कहें महोबा का ही नक्शा है और हम पूरा प्लान हम कम्युनिटी लेवल पे ये कर लेते हैं। एग्जैक्टली। यूपी इज़ वेरी रिच इन डेटा। मतलब हम लोगों ने चिन्हित किए थे, आइडेंटिफाई किए थे कि 20-22 डिपार्टमेंट्स हैं जो वाटर पे काम कर रहे हैं, इतना राइट फ्रॉम द कैनाल वहाँ तक। तो जब ये डेटा की बात करते हैं तो डेटा ड्रिवन हमारी पॉलिसी हो, पॉलिसी ड्रिवन हमारी टेक्नोलॉजी हो। तो जब हम ये पूरी इंटीग्रेट करेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम सब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। क्या बताइए कि डिस्पाइट ऑफ मैंडेटरी प्रोविजंस बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, हर वेल पे जो बोरवेल है उसमें एक फ्लो मीटर होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे हमारा इंडस्ट्री हो। हमने अपने एक्ट के थ्रू इंडस्ट्रीज़ पे तो ये फोर्स कर दिया कि आप फ्लो मीटर लगाइए, क्योंकि जब तक हमको यही नहीं पता है कि क्राइसिस कितनी है। पूरे इंडिया में जो डेटा आ रहा है 246 बिलियन क्यूबिक मीटर, दिस इज अंडर रिपोर्टेड, हाईली अंडर रिपोर्टेड, बिकॉज ओनली 40 टाउनशिप्स आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि करीब 700 टाउनशिप्स आपकी हैं। तो जो रिमेनिंग जो आपकी वो हैं टाउनशिप्स, वहाँ कितना पानी निकाल रहे हैं वो आपके आंकड़ों में आ ही नहीं रहा है। जब आपके आंकड़ों में नहीं आएगा आप मैनेजमेंट क्या करोगे? एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। Thanks for again re-emphasizing the importance of data, and more importantly वो इतना multiple sources और different kind of sources से वो data आ रही है, and how do you integrate that data and do a proper. So on that note I'll come back to you, Sudhir, with a question everyone is emphasizing, and the importance of data, and in the last session talked about the real-time data. That data should come real-time, and it's coming from very heterogeneous sources. It can be sensors, cameras, and any other communication sources. We heard about LRIs, LRIs or the more GIS mapping, generating data. And GS Naveen Kumar emphasized on DSS, applying DSS on that. But to do all this, to really apply that sort of analytics and arrive at those insights, you need a unified command and control center kind of infrastructure. So what would be your recommendation on having such? First, I would like to say, make a basic part is making a composite data infrastructure and getting this data archived. We have technologies today, very varied technologies, take much more what we say computing power and storage power, but as that is not needed, what we recommend is to have a storage based on change. You store the data when the change happens, and that reduces the storage of the data at the data centers to 80% to 90%. That's what we are able to see. That's one part out there what we do. So since it's very important to have the data, when you want to do analytical engines on top of it, you need to have more computing power.
So that's another part what we integrate. So what we do under command and control center is look at real-time data, look at the data which is coming from the field, and also look at the business data out there, which is really from the market, I would say. That's a consumer. So these are two different data. One is time series data, one is standard data, what you have. So those all things are collated together in the command center and give you a contextualized view where the things are, who are the persons doing it, who should be taking the options out there to deliver the goods to the consumer. That's what we do under command control center. Another thing is, since it's a real time as well, so you can interpret it faster and make corrective actions. Also, it works as a knowledge base for you. In case you don't have an expert in there, you can go to the knowledge base and say to the operator or the maintenance guy downstairs what are the things he has to do and guide him in that whole process. That's what it brings to the table for you, overall efficiency, what we bring out here. Thanks. Thanks. So one last round, I'll go to each of the panelists and ask about what are going to be the, I'll start with DK Singh again. Department perspective, how are you looking at the key actions which are planned, if I may say, over the next 12 to 18 months maybe? Yes, sir. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हमारे मिशन द्वारा स्कीम्स बनाई जा रही है, उसमें हम ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक हमारी रीच जो है वो हमारा है कि जो भी हमारे ESR बने हुए हैं वहाँ से हम कितना पानी किसी विलेज को दे रहे हैं। बट हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है कि हम पर्टिकुलर कंज्यूमर को कितना पानी दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। नो डाउट इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। तो 2 करोड़ 67 लाख परिवारों तक पहुंचना, हमें रूरल एरिया में पहुंचना है। तो ये हमारा जो अभी हम लोग विकसित भारत का मिशन की बात करते हैं या विजन 2047 की बात करते हैं, तो हम लोग उसके पहले यहाँ तक जाने का प्रयास है कि हम हर घर तक टेक्नोलॉजिकली ये मॉनिटर कर सकें कि हम क्या दे रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, जो भी हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। बट इन नियर फ्यूचर विद इन 2-3-4 ईयर्स ये हमारा प्रयास है और हम लोग की प्लानिंग है कि हम एटलीस्ट हर गांव के हर हैबिटेशंस तक, एटलीस्ट हैबिटेशन लेवल पर हम कितना पानी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2,58,000 से भी अधिक हैबिटेशंस हैं। तो उतने यदि हम सेंसर बल्क मीटर विथ सेंसर ट्रांसमीटर लगाते हैं तो हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे कि हम एक पर्टिकुलर हैबिटेशंस में किस क्वालिटी का क्या एडिक्वेट वाटर सप्लाई हम कर पा रहे हैं, एंड देन अप टू द इंडिविजुअल यूजर। ठीक है, सो बेसिकली द नियर फ्यूचर फोकस इज हैविंग दोज सेंसर्स deployed in those 2 lakh plus habitations at least. Okay, sir. Dr. Pandey, again, वही सेम नेक्स्ट 12 to 18 months में आपका की फोकस एरियाज क्या है? We are doing almost 1 lakh works for the water conservation in all the panchayats. This year we have completed almost 26,000. In the next 1 year, we are going to achieve more target regarding the water conservation works in all the Gram Panchayats. We are doing massive plantation, almost 13 crore plants every year in all the Gram Panchayats. This is also very important. They play a very important role in water recharging. And massive drive for the इनके प्रचार प्रसार के लिए गाँव में हम काम कर रहे हैं कि जो हमारे वर्क्स हैं इनका प्रचार प्रसार हम कर सकें। जो थैंक यू, थैंक यू। रविंद्र सिन्हा जी, आपका वो फोकस? चूँकि हम सजेस्टिव कह सकते हैं, क्योंकि मैं सिस्टम से अलग हूँ इस समय।
दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि अगेन मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो हम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, जो वाटर मैनेजमेंट की हम होलिस्टिक की बात करते हैं, हमें कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो इन चीज़ों को इंटीग्रेट करे। क्या जब तक हम किसी एक, पहली बात तो जो वर्किंग यूनिट हमारी है, सपोज करिए कि आपका पेयजल मिशन एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, पहली बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। नाउ जब हम 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमें अपना नज़रिया बदलना होगा, बिकॉज देयर आर टू यूनिट्स, वाटरशेड की बात आ रही है और एक्विफर्स की बात आ रही है। एक्विफर्स आर नॉट बकेट्स। हमारे पास कितना उसके जो कितना डायमेंशन है एक्विफर का, अगर हम गंगा, बिकॉज इन इंडिया देयर आर 42 मेजर एक्विफर्स और दे आर ऑल बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल सेटअप्स, डिफरेंट जियोलॉजी दैट कंट्रोल्स द एक्विफर्स, और एक्विफर्स पे ही जो हम पानी को विड्रॉ कर रहे हैं उस पर हमारी 80% कंट्री की डिमांड्स पूरी हो रही हैं। और इसका मतलब कि सरफेस वाटर को अभी हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली हम कौन कौन से इंटरवेंशंस ला सकते हैं कि जो हम सरफेस वाटर का यूज़ बढ़ाएं, और जो हमारा ग्राउंड वाटर स्ट्रेस में है उसको हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको हम डी स्ट्रेस करने की कोशिश की ओर बढ़ें। अगर हमारी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम सब हमारी ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट हो रही है, बहुत पानी है हमारे पास सरफेस वाटर में, हमारे पास यहाँ पे और बैठे हुए लोग जानते होंगे अच्छा खासा पानी है, लेकिन हम उसको कैसे, जो अंडर यूटिलाइज हो रहा है उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इसके अलावा एक्विफर्स को, अगर हमें जो एक्विफर्स हमारे डिप्लीट हो गए हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करें, उनको हम फोकस करें, हम पूरी भी जो अपनी जो हमारे इंटरवेंशन हैं हम उसको अक्रॉस द स्टेट या अक्रॉस द कंट्री न चलाएं, हम उन एक्विफर्स को कोशिश करें, उस पर हम रिड्यूस करें 20 to 30% एक्सट्रैक्शन, और जो हमारे वाटर एफिशिएंट डिवाइसेस हैं, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो चाहे और हमारी टेक्निक्स हो, उससे हम उसको रिसाइकिल रीयूज उससे भी हम रिड्यूस करें, और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करें कि वाकई रिडक्शन इन एक्सट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा, जब वो ग्रेजुअल पानी अपने आप बढ़ेगा, नेचर ने जो व्यवस्था बनाई, अभी सर ने भी कहा था कि जो नेचर है वो उसके अंदर बहुत ताकत है अपनी, तो हम उसको जगह दें, स्पेस दें कि एक्विफर पानी वापस आए। लखनऊ का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, लखनऊ में ट्रफ्स बनना शुरू हो गई है। जो रिपोर्टेड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है दैट इज रफली नियर अबाउट 300 मिलियन लीटर पर डे, लेकिन जो हम लोग ने कैलकुलेट किया, जो बिल्डर्स और जो पूरा लखनऊ का अक्रॉस द सिटी, करीब 1800 MLD पानी, रफली 4 टाइम्स ऑफ द रिपोर्ट जो रिपोर्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा। तो ये सब, इससे क्या हो रहा है, कैविटीज़ बन रही हैं। तो ये कैविटीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा एक लैंड सब्सिडेंस की ओर एक खतरा बढ़ रही है आगे आने वाले दिनों में, बिकॉज हम अभी तो एक ऐसी सॉइल बैठे हैं जो बहुत थिक है, लेकिन धीरे धीरे वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें, और वो आगे जाके सब्सिडेंस के फॉर्म में बदल सकती है, क्योंकि हमारा जो पानी हम निकाल रहे हैं वो हम फ्रेटिक जोन छोड़ दिया है, मतलब जो रिप्लेनिश होता था, हम अब डीपर एक्विफर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जितने ट्यूबवेल्स लगे हैं शहर के अंदर, 600-700 ट्यूबवेल जल संस्थान के, वो सब डीपर एक्विफर्स पे लगे हुए हैं। तो ये एक थोड़े से सिग्नल्स हैं ऐसे, तो इसको हम कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ें, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करें। जो डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स हमारे हैं, वो हम DK सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जितना पानी ले रहे हो वो आप डीपर एक्विफर से ले रहे हो, और जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो फ्रेटिक का कर रहा है 50 मीटर। अब वो हमें अपनी थोड़ा विजडम को बदलना होगा, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, हमें अब पीजोमीटर्स डीपर पे जाने होंगे। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने कुछ पीजोमीटर्स लगाए थे 250 मीटर की डेप्थ पे, तो उनके क्या रिजल्ट्स रहे, उनको हम कैसे कोरिलेट करें इनके प्रोग्राम से। नहीं तो जो हम हमारे जो डीप ट्यूबवेल्स हैं उसके, या इंडस्ट्रीज में डीप ट्यूबवेल्स हैं, उसी डेप्थ का हम पीजोमीटर बनाएं, ताकि हम उसको डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर तरफ से उसको डेली उसका एक रिकॉर्डिंग कर सकें हम। Thanks. So, creation of an body to monitor the whole water management system. Thanks. With that, we come to a conclusion. अच्छा, मैं कुछ एक बोलना मिनट चाहते हैं? आपको इंटरप्ट करूँगा। जैसा कि हमारे सिन्हा साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। जो भी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा या हमारे इरिगेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा पीजोमीटर्स लगाए जाते हैं, उसकी संख्या आई थिंक ये हंड्रेड्स में होंगे, और हम लोगों ने 40,000 डीप ट्यूबवेल्स बनाए हैं जल जीवन मिशन को पानी देने के लिए। वो सारे हमारे डीप ट्यूबवेल का इस्तेमाल हम पीजोमीटर के रूप में भी कर सकते हैं, उसके सारे
डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कितना हम पर डे ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसका क्या वाटर लेवल है, और कम्युलेटिव पर डे कितना ड्राफ्ट कर रहे हैं, कम्युलेटिव अब तक का कितना हमारा ड्राफ्ट है, ये हमारे पास ऑलरेडी डेटा हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम पर उपलब्ध है। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा स्ट्रेस ग्राउंड वाटर पर है, निश्चित रूप से चूँकि हमारा ग्राउंड वाटर अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये बड़ा सेफ़ है और एक सिंपल ट्यूबवेल करके इसके पानी को ले करके हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, और इसलिए इसको चीपर मीन्स सोर्स माना गया है कि ये काफ़ी चीप सोर्स है एज रिगार्ड ऑफ सरफेस वाटर सोर्स के। हम नदी से पानी ले करके उसको ट्रीट करके और डिफरेंट विलेज में उसको सप्लाई करें, तो दैट इज़ कॉस्टलियर अफेयर्स। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश ने काफ़ी इनिशिएटिव ले करके और कई फोरम पर काफ़ी स्ट्रगल के बाद, लड़ाई करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने कम्प्लीटली सरफेस वाटर को लेकर के और उसको ट्रीट करके और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के सारे विलेज को लगभग हम लोग 14-15 हज़ार डिस्ट्रिक्ट्स विलेज में सरफेस वाटर से, जैसे हमारे बुंदेलखंड और बिंद के हमारे पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे साहब हैं, आपके क्षेत्र में जो बिंद क्षेत्र है हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र का, और 9 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे बुंदेलखंड के हैं। इसके साथ साथ जो हमारे वाटर कंटामिनेटेड एरिया है, जो है बलिया का हुआ, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, उन्नाव, ये जो फ्लोराइड और आर्सेनिक अफेक्टेड एरिया है, इस एरिया में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स को सरफेस वाटर से फीड कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कि एक होलिस्टिक जब तक डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की बात नहीं होगी, ग्राउंड वाटर केवल ग्राउंड वाटर देखेगा, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट केवल सरफेस वाटर को देखेगा, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट केवल कहीं से भी पानी निकाल के पीने के लिए दे देगा, तो इसका समाधान प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से जैसा कि सिन्हा साहब हमारे काफ़ी अनुभवी इंजीनियर रहे हैं और हम लोग के काफ़ी अग्रज रहे हैं, हम लोग को बड़ा अवसर मिला है इनके साथ काम करने का। लेकिन जो भी इनके सुझाव है ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट तक जाना चाहिए कि एक कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जो ये सारे डिपार्टमेंट्स के डाटा को इंटीग्रेट करके और उसका एनालिसिस करते हुए अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट प्लान बने होलिस्टिक वे में, तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। Thanks. So on that positive note about 14 districts using surface water and that advice to create that body which looks after that integration, we end this panel discussion. And before I ask the panelists to disperse, my request is to Padma Shri Umashankar Pandey ji to hand over a token of gratitude to all our panelists here. Sir, if you can. Shri Shamim Akhtar. D.K. Singh. Dr. Anirudh Pandey. Dr. Ravindra Singh. Sudhir Dembi.